Good morning. In my last video, I have explained that the life cycle of Plasmodium, that is malarial parasite, is divided into three phases. First, schizogony. Second, gamogony. And third is sporogony. About schizogony, that is the first phase of life cycle of Plasmodium, have already discussed. In this video, I shall talk about the second phase, that is the gamogony of the life cycle of Plasmodium. Actually, gamogony is the sexual stage of the life cycle of Plasmodium. This is the sexual stage, and this sexual stage is the formation of male and female gametocytes. This phase, gamogony, starts in the body of the human. This starts in the body of human, but it is completed into the body of mosquito. While it is completed in the body of mosquito, that is the female Anopheles mosquito. हम लोग अपने लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि when the sporozoites released along with the hemozoin, merozoites, and the hemozoin, this hemozoin is the toxic substance that is responsible for the attack of malarial fevers. These merozoites released from the erythrocytes in the plasma of the blood stream, but further these merozoites infect the new uninfected RBCs. अब यहां ये मेरोजोइट्स, मोस्ट ऑफ द मेरोजोइट्स
repeats the most of the merozoites. ये क्या करता है? रिपीट करता है. किसको रिपीट करता है? रिपीट्स द इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी फेज. But some of the merozoites do not participate in the repetition of the erythrocytic cyzogony. They differentiates into the sexual stage, sexual phase, that is called gametocytes. But some merozoites differentiate in sexual phase, that is called gametocytes. ये कुछ मेरोजोइट्स किस में डिफरेंशिएट हो जाता है? गैमेटोसाइट्स में. ये गैमेटोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स. First is micro gametocytes and second is micro. This is micro gametocytes and next is micro gametocytes. Microgametocytes is also known as male gametocytes. This is also known as male gametocytes. This gametocytes is smaller in size, but these are smaller in size, smaller and fewer in number. But this microgametocytes is also known as the female gametocytes. Female gametocytes. And these are larger in number, larger in size and more numerous. Here in the body of the human, the further development of the gametocytes, here gametocytes means both the male gametocytes and female gametocytes.
यहां दो में से किसी भी गैमेटोसाइट्स का फर्दर डेवलपमेंट संभव नहीं है। इसका फर्दर डेवलपमेंट कहां होता है? इन द बॉडी ऑफ द मॉस्क्यूटो, दैट इज फीमेल एनाफेल्स मॉस्क्यूटो। हियर फर्दर डेवलपमेंट इज किसका? ऑफ गैमेटोसाइट्स। is not possible. In human body, its further development takes place in the body of the mosquito, female Anopheles mosquito, in the stomach of the फीमेल एनाफेल्स मस्क्यूटो। कहां होता है इसका फर्दर डेवलपमेंट? इन एस्टोमेक, दैट इज गट ऑफ फीमेल एनोफिलेस मॉस्क्यूटो। अगर ये गैमेटोसाइट्स फीमेल एनाफिल्स मॉस्क्यूटो के द्वारा सक नहीं किया जाएगा तो ये गैमेटोसाइट्स मर जाएंगे, इट विल डाई। इट विल ऑल्सो डाई इफ दीज आर सक्ड बाय द अदर ग्रुप ऑफ द मस्क्यूटोज। दोनों कंडीशन में ये मर जाएंगे। लेकिन अगर फीमेल एनाफिल्स मस्क्यूटो सक करता है ब्लड को ह्यूमन बॉडी से, तो यहां पर इसके इसके स्टोमक में, इसके गट में इसका फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जब कोई फीमेल एनाफिल्स मस्क्यूटो बाइट करता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन्स को फॉर द सकिंग ऑफ द ह्यूमन ब्लड, तो इसके साथ साथ ऑल द स्टेजेस ऑफ इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी and the gametocytes, these both microgametocytes and microgametocytes are sucked. जितने भी स्टेजेस हैं एरिथ्रोसाइट्स साइजोगोनी के, all the stages are digested by the mosquito. Here the stages of erythrocytic saizogony and these gametocytes are carried in the stomach of the mosquito. ये सभी मॉस्क्यूटो के स्टोमक में पहुंचा दिए जाते हैं, चले जाते हैं ये। और ये जितना भी स्टेज है इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी का, दे आर डाइजेस्टेड by the mosquito
but the mosquito is not able to digest the gametocytes, these gametocytes, because the ability to withstand the action of digestive juice, डाइजेस्टिव जूस के एक्शन के कारण और जितने भी दूसरे पार्ट्स हैं वो तो डाइजेस्ट कर लिया जाता है बाय द मस्क्यूटो, बट यहां पर इस गैमेटोसाइट्स को ये डाइजेस्टिव जूस डाइजेस्ट करने में सक्षम नहीं होता है, ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। अब इसका फर्दर डेवलपमेंट मस्क्यूटो के स्टोमक में होता है। ये गैमोगोनी इन्वॉल्व करता है दो इवेंट्स को, और ये दो इवेंट्स हैं, दीज आर द गैमेटोजेनेसिस एंड second is fertilization. Now I shall discuss about the gametogenesis at first. Here in the gametogenesis, both the gametocytes, microgametocytes and microgametocytes develops. Microgametocytes develops into the male gamete. Microgametocytes develops into male gamete. ये मेल गैमेट माइक्रोगैमेट भी कहलाता है, यू कैन से इट एस्पर्म, माइक्रोगैमेट। by the process of the एक्सफ्लैजिलेशन, ये किस प्रोसेस से मैच्योर होता है मेल गैमेट में? तो बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सफ्लैजिलेशन। In the process of exflagellation, the nucleus of the microgametocytes divides repeatedly and forms 6 to 8 daughter nuclei. ये क्या फॉर्म करते हैं? 6 to 8 डॉटर न्यूक्लियाई। अब ठीक माइक्रोन्यूक्लियाई का, सॉरी माइक्रोगैमेटोसाइट्स का cytoplasm of microgametocytes
gives rise the same number of same number means 6 to 8. Flagella like projection. ये साइटोप्लाज्म फॉर्म करता है 6 to 8 फ्लैजेला लाइक प्रोजेक्शंस फॉर्म करता है, और प्रत्येक ये फ्लैजेला लाइक प्रोजेक्शन में ये 6 to 8 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म किया था, वो सब में एक एक डॉटर न्यूक्लियाई इंटर कर जाता है, एंड इन विच each daughter nuclei enter each flagella like projection अब ये फ्लैजेला लाइक प्रोजेक्शंस न्यूक्लियस के साथ साइटोप्लाज्म से अलग हो जाता है और क्या फॉर्म करता है? माइक्रोगैमिट, दैट इज एंड फॉर्म्स और प्रोड्यूस मेल गैमिट. And the process of the formation of male gamete is called exflagellation. This is exflagellation. अब इधर इसके साथ माइक्रोगैमेटोसाइट्स, ये मैच्योर करता है, मैच्योर इन द फीमेल गैमेट्स, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द माइक्रोगैमेट. These all the process are included in the topic of this gametogenesis. Now the stage of fertilization here starts. This male gamete and this female gamete fuses. This is the stage of fertilization. Gamogony includes two stages, gametogenesis and second is fertilization. In the fertilization, the male gamete that is produced from the male gametocytes and the female gamete from female gametocytes fuses, unites and forms the zygote. ये zygote फॉर्म किए. zygote कैसा होता है? Diploid होता है. This zygote is
diploid, राउंड शेप्ड, ये गोलाकार होते हैं। एंड नॉन मोटाइल, non-motile means they are not able to move. But soon, these non-motile round-shaped diploid zygote converts in the elongated shape. ये round-shaped zygote elongated हो जाते हैं, becomes elongated, and they start moving on the wall of the stomach. Elongated or worm-like. And starts मूविंग, मूविंग करना, ये मूव करना शुरू कर देते हैं कहां? इन द वॉल ऑफ द स्टोमक ऑफ मस्क्यूटो। एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड ऊकाइनेट। ये स्टेज क्या कहलाता है? ये ऊकाइनेट कहलाता है, या इसे हम इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्मिकूल। ये ऊकाइनेट्स पियर्स करता है द वॉल ऑफ द गट, pierce the wall of gut of mosquito. Mosquito, that is female anopheles mosquitoes. ये ऊकेरिट पियर्स करते हुए ये चला जाता है ऑन द आउटर लेयर ऑफ द, जस्ट बिलो द आउटर लेयर ऑफ द stomach wall. This is the upper layer of the, suppose this is upper layer of the stomach wall, and just below this upper layer here the ऊकाइनेट्स come in the rest. यहां पर ये किस रूप में आ जाते हैं? ये यहां पर रेस्टिंग पोजीशन में आ जाते हैं, और इसका जो इलोंगेटेड शेप है, वर्म लाइक शेप है, ये फिर से किस रूप में आ जाते हैं? दे बिकम्स एस्फेरिकल। यहां पर ये एस्फेरिकल शेप में आ जाते हैं, रेस्टिंग पोजीशन में आ जाते हैं, और अपने आप को इनक्लोज्ड इटसेल्फ इन द परवियस सिस्ट वॉल। किसमें इनक्लोज कर लेते हैं? किसमें अपने आप को ये बंद कर लेते हैं? इन द सिस्ट वॉल। हियर दे इनक्लोज in the pervious cyst wall, और यहां पर ये रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, और इस स्टेज को ऊसिस्ट्स कहा जाता है, ऊसिस्ट्स या एस्पोरोन्ट, एंड दिस इज कॉल्ड
oocysts or also known as sporoids. oocysts अपने आप को परवियस वॉल में, सिस्ट वॉल में कवर्ड किए हुए रहता है, ढके हुए रहता है, और इसका अब फर्दर डेवलपमेंट होता है। थर्ड स्टेज एस्पोरोगोनी में, गैमोगोनी के बाद थर्ड स्टेज शुरू होता है। थर्ड स्टेज शुरू होता है इसका एस्पोरोगोनी फेज में oocysts का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। Here asexual reproduction takes place. और ये oocysts न्यूट्रिशन कहां से ऑब्टेन करता है? They get their nourishment from the pervious cyst wall. Sorry, they gets the nutrition from the body of mosquito through pervious cyst wall. सिस्ट वॉल के थ्रू ये मॉस्किटो को शरीर से अपना नॉरिशमेंट करते हैं ड्यूरिंग दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सबसे पहले oocysts अपना साइज बड़ा करता है, दे ग्रोज इन साइज, and its nucleus divides repeatedly in numerous daughter nuclei. Suppose this is the cyst wall of the oocysts, and under the cyst wall this is oocysts, and its nucleus divides repeatedly and forms many daughter nuclei, thousands of daughter nuclei, and the mass of the cytoplasm here, they surrounds the each daughter nuclei. And this resulting daughter cells is called sporozoites. ये क्या कहलाते हैं? ये sporozoites कहलाते हैं। These produced formed daughter cells is called sporozoites. अब ये sporozoites हजारों की संख्या में, about 10,000, और these sporozoites now makes the way to the salivary gland of the mosquito. Salivary gland of
ये स्पोरोजोइट्स अब मस्क्यूटो के स्टोमक से, उसके गट से कहां चले जाते हैं? सैलिवरी ग्लैंड में ये चले जाते हैं, वहां पर ये रुकते हैं। और जब कोई इन्फेक्टेड मस्क्यूटो, फीमेल एनाफिल्स मस्क्यूटो किसी हेल्दी पर्सन्स को काटता है, किसी हेल्दी ह्यूमंस को ये बाइट करता है, तब बाइट करने के दौरान, बाइट क्यों करता है? फॉर द सकिंग ऑफ द ह्यूमन ब्लड। और बाइट करने के दौरान ये मॉस्क्यूटो रिलीज करता है अपना सैलिवरी सेक्रेशन, दैट इज कॉल्ड सैलिवा। ये सैलिवा का सेक्रेशन करते हैं इन द ह्यूमन ब्लड, बिकॉज दिस सैलिवा एक्ट्स एज द एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस। ये ह्यूमन ब्लड को सकिंग के दौरान जमने नहीं देता है। और सैलिवा के साथ साथ ये स्पोरोजोइट्स भी रिलीज्ड हो जाता है, चला जाता है इन द ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड में ये सैलिवा के साथ साथ स्पोरोजोइट्स भी इंटर। यहां पर एक बार हम रिपीट करते हैं थर्ड फेज स्पोरोगोनी को। ये oocytes स्पोरोगोनी फेज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान इसको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, नॉरिशमेंट चाहिए। एंड फॉर द टू गेट द न्यूट्रिशन, they get the nutrition from the body of the mosquito through this cyst wall, और फिर they grow their size and its nucleus divides repeatedly, और बार बार ये इनका न्यूक्लियस डिवाइड होता है और बहुत सारे हजारों में ये डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म कर देते हैं। अब ये डॉटर न्यूक्लियाई इज सराउंडेड बाय द मास ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मास इसको सराउंड्स कर लेता है, घेर लेता है, और जो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, दैट डॉटर सेल्स आर कॉल्ड स्पोरोजोइट्स। ये क्या कहलाता है? ये स्पोरोजोइट्स कहलाता है। ये काफी इन्फेक्टिव फेज होता है स्पोरोजोइट्स का, और इनकी संख्या अबाउट 10,000 के लगभग रहती है इन वन oocysts। अब oocysts रप्चर कर जाता है, और आफ्टर द रप्चरिंग of the oocyst, these sporozoites released in the stomach of the female Anopheles mosquito। यहां पर ये जब रिलीज हो जाता है तो ये कहां वहां से चला जाता है? स्टोमक से they goes to the salivary gland of the mosquito। और जब कोई infected female Anopheles mosquito ह्यूमन ब्लड सक करने के लिए उसे बाइट करता है, तो फिर अपना सैलिवा रिलीज करता है, और सैलिवा के साथ साथ ये स्पोरोजोइट्स भी ह्यूमन ब्लड में रिलीज्ड हो जाता है, और फिर ये स्पोरोजोइट्स कंटिन्यू करता है फ्रॉम द फर्स्ट फेज, दैट इज द साइजोगोनी। साइजोगोनी को ये फिर कंटिन्यू करता है। एंड इस तरह से हम देखते हैं कि द inoculation of the sporozoites in the human body perpetuates the life cycle of the malarial parasite, and this malarial parasite is Plasmodium। इस तरह से
प्लाज्मोडियम पैरासाइट दैट मलेरियल पैरासाइट्स का लाइफ साइकिल कंप्लीट हुआ। थैंक यू।